Okay. Am I audible properly? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ayush, बोलिए. You raised your hands. I need a थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आज, अनस्टेबल सा दिख रहा है, बट स्टिल धीरे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं. We have completed encryption process. That means central dome in which DNA to RNA, RNA to T. DNA that is DNA replication. Write up also for that DNA replication. After that, DNA replication जो double-stranded DNA बना, that is converted to single RNA. और वो जो single strand बना प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस. सो जो डबल स्ट्रैंडेड डबल डीएनए कन्वर्टेड टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो स्ट्रैंड आरएनए बनना, व्हाट वाज दैट सेक्शन ना, उसका डायरेक्शन क्या था? इट वाज 5'3". It was 5' to 3', because RNA polymerase and DNA polymerase both are functionally in the direction of 5' to 3'. But till 5' of that DNA was not, it was called NH, newly synthesized RNA or nascent RNA forms. That nascent RNA, prokaryotes, soon coupled with the translation. Perfect. So that RNA, which is single-stranded and was acting as template, that was 3' to 5'. And the actual RNA, that is mRNA, that was 5' to 3'. But in prokaryotes, it is directly coupled with the translation process. Whereas in eukaryotes, it has to undergo what is this transcriptional process. There were these three processes: Capping, tailing, and splicing. Capping, tailing, and splicing. Was done by capping was done by 7-methyl-guanosine triphosphate. Perfect. 7-methyl MGTP, and the tailing was performed by adenylate residues. तो कैपिंग हो गया 5' पर, टेलिंग हो गया 3' पर, and important process that was Splicing. RNA splicing or RNA splicing, in which some nonsense sequence known as introns were removed, and only exon, which are going to be expressed as the characters, are joined together to form a nascent RNA. Am I right? Yes, sir. So, Perfect. Perfect. No problem. So now we are switching that, since we have formed the RNAs, that is mRNA, tRNA, and rRNA. I already told you that was MTR, MTR. The mRNA was how much percent? 3 to 5%. 3 to 5%. tRNA was how much? 10 to 10 to 15%. 15%. And rRNA how much? 70 to 80%. Perfect. यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका था? Ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Perfect. Perfect.
Mansi Munot, are you there, Mansi? Not there. Perfect. चलिए, तो आज शुरू करते हैं बच्चों आरएनए वर्ड, क्योंकि जो 3 आरएनए हम लोग बनाए हैं वो आरएनए पहले समझ ले। उस आरएनए की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि ये आरएनए से ट्रांसलेशन कैसे होता है। परफेक्ट। हेडिंग डालेंगे आरएनए वर्ड और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सबसे पहले हाईलाइट करेंगे हम लोग। पेज नंबर 104 आरएनए वर्ड, उसके ऊपर मैंने पहले बताया था जो सेंट्रल डोग्मा होता है, द सेंट्रल डोग्मा इज डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and this process is known as translation. So this is the stage molecule and this is the transmitting molecule. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. Perfect. Perfect. So that RNA जो कि एक ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन मॉलिक्यूल है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड यदि हम देखें तो हमें ये भी समझ में आता है कि बिना आरएनए के इट कैन नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन। दैट मींस द रोल ऑफ आरएनए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना कोई भी डीएनए प्रोटीन ही नहीं बना पाता। सो डेफिनेटली ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स will probably make a base of evolution. In course of evolution सबसे पहले यदि कोई ऑर्गेनिज्म हम एक्सपेक्ट करते हैं तो दैट वाज आरएनए, क्योंकि उसके बिना प्रोटीन तो बना ही नहीं होगा, और प्रोटीन ही यदि नहीं बना तो फिर कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आरएनए डोमिनेंट है डीएनए पर। बट यस, विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन that becomes more complicated. सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड, अनस्टेबल से थोड़ा स्टेबल, मोर रिएक्टिव से थोड़ा लेस रिएक्टिव, मोर म्यूटेशन से लेस म्यूटेशन, और इसकी वजह से डीएनए इमर्ज एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। बट स्टिल सिंस आरएनए वर्ल्ड कभी किसी जमाने में डोमिनेंट था, इसीलिए सारी प्रोसेस एनसीईआरटी का स्टेटमेंट 2015, 2016, 2015 का रिपीट, हर साल उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया। And the question was, RNA was the first genetic. There was enough translation around RNA used to act as genetic material as well as catalyst in living system. भाई स्प्लिसिंग की जो प्रोसेस है वो भी ये साबित करती है कि स्टिल डीएनए में ऐसा पार्ट पड़ा हुआ है जो वेस्टिजियल है। Just compare it with the vermiform appendix, जो प्रेजेंट है अभी बट नॉन फंक्शनल है। इंट्रॉन्स प्रेजेंट है अभी, बट हमारे लिए उसका कोई प्रोटीन बनने से उसका लेकर सेंट्रल डोग्मा में देयर इज नो रोल एट ऑल। शोज कि ये कभी बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा होगा। और आती है कि आरएनए किसी जमाने में बड़ा डोमिनेंट रहा होगा, और इसीलिए आज भी the viruses which are acting as connecting link between non-living to living, they have most of viruses have RNA as their genetic material. Most of the DNA have, most of the animals DNA, HIV virus, coronavirus, which are still have RNA as their genetic material. तो ये 2-3 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट समझना। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. Why DNA is more stable than RNA? Anyone? Presence of the OH. Perfect. OH. Presence of hydroxyl group at second position make this RNA more active and catalytic. और इसका एक एग्जांपल अपन ने पढ़ा था 11th में, that was ribozyme, which is a nucleic acid, RNA, but acting as an enzyme or catalyst. Perfect. DNA being double-stranded, having
in complementary strand further resist changes by evolving a process of repair. जहां पर वो रिपेयर लिखा है उस वर्ड को भी समझिए कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि खुद ही अपना रिपेयरिंग कर सकता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं। और रिपेयरिंग कैसे कर सकता है? तो यदि डीएनए हो जाए, सो दिस थाइमीन इन डीएनए कैन फॉर्म अ टीटी डाइमर। ये ठीक वैसा ही होता है दोस्तों टीटी डाइमर, जैसे इन अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ, चाइल्डहुड स्टेज, आपकी साइकिल की चेन टूट जाती थी तो पापा उस साइकिल की चेन को एक लिंकर लगा कर दिया और उसकी रिपेयरिंग कर देते। दैट लिंकर इज नोन एज द टीटी डाइमर, विच इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन आरएनए, क्योंकि उसमें थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। सो आरएनए कांट रिपेयर एट देयर ओन, बट डीएनए कैन। देयरफॉर DNA act as better genetic material, but still the dominance is of what? RNA. Understood the concept? Yes. Perfect. तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप्स ऑफ आरएनए। तीनों आरएनए में आपको पढ़ाऊंगा, एम, टी और आर, और उसका हम डिटेल भी समझें। परफेक्ट। ये जो स्टेटमेंट आप दिए हैं, ये स्टेटमेंट्स आपने हाईलाइट कर लिए होंगे, दैट आई एक्सपेक्ट। कंसेप्ट अंडरस्टूड नताशा? Yes, sir. परफेक्ट। अब हम बच्चों टेबुलेटेड फॉर्म में तीनों आरएनए लिख लेते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशन। पॉइंट नंबर 1, RNA word, point number 1, function as carrier of coded genetic information. Function as carrier of coded genetic information. Number 2, carries this from DNA in nucleus to ribosome in cytoplasm. Point number 3, जहां भी पॉइंट में डाउट आएगा मुझे बोल देंगे। There are 6 types of RNAs. तो मेजर हमने 3 पढ़े हैं, MTR. There are 6 types of RNAs. Visibility is clear? Yes, sir. MTR जो मेजर है, बाकी एक जेनेटिक आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जिसमें मुझे आपको पढ़ाने हैं 3, क्योंकि जेनेटिक में आपको बता चुका हूं जेनेटिक आरएनए जिसमें डीएनए होगा ही नहीं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए दैट इज कॉल्ड एज एसएनआरएनए, जो छोटे छोटे आरएनए बनते हैं जिससे फिर बाद में डीएनए बनता रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। और साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो कि सेल ऑर्गेनेल्स में, उन सब को जानने की हमें जरूरत ही नहीं है ना। RNA is double-stranded or dsRNA in some reoviruses.
in some reoviruses. Reoviruses मतलब that is retroviruses. रेट्रो मतलब पुराना, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता था, dsRNA, दैट इज नोन एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब वो क्यों ऐसा करता था, जैसे अभी कल सवाल आया था क्लास में कि सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। When this RNA is the basic genetic material, if RNA is the genomic RNA or the genetic RNA, then it will form the DNA first in the body of host, जहां पर वो अटैक कर रहा है, in the body of host, जहां पर वो RNA अटैक कर रहा है, like कोरोना वायरस हमारे डीएनए से इनकॉर्पोरेट हुआ और हमारे डीएनए से उसने अब अपना आरएनए बनाया, तीन टाइप MTR। सो इस प्रोसेस को मैं कहता हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो बाद में डीएनए बना के बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जब करेगा तो बनेंगे तीन आरएनए M, T एंड R, और जिनसे बनेगा प्रोटीन। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन यदि बनना होगा तो आरएनए मस्ट बी व्हाट, agree or not, double strand. agree or not। यदि जेनेटिक मटेरियल से आरएनए बनने वाला होता तो कहने की जरूरत is genomic, मतलब the RNA is genetic। If RNA is genetic RNA, then DNA will not be at all present. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes. If RNA is genetic, then definitely this RNA which is genetic that cannot synthesize protein directly. So it's to compete the DNA of the host. फिर उसने बनाना चाहिए RNA जो तीन टाइप का बनेगा, and that RNA will form the protein. Wherever and wherever the protein form, it is 100% from non-genetic RNA. Do you agree with this? Yes. Yes. वही मैंने लिखाया कि जब ये आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म हो सकता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा और उससे फिर प्रोटीन बनेगा। परफेक्ट। अब वन बाय वन हम आरएनए को लिख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs are M, T and R। मेरे साथ इन करते चलेंगे। mRNA 3 to 5% of total। Point number one। Point number two, longer RNA, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो इसी के पास कोडेड है। longer RNA carries instructions from DNA। This may be called as, can be called as genetic because carry genetic information। इन तीनों में इसको अकेले को आप mRNA को जेनेटिक आरएनए कह दो, क्योंकि एक्चुअली यही ट्रांसफर कर रहा है। प्रोटीन जो बनेगा दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम नॉन जेनेटिक पार्ट, क्योंकि वो आरएनए ओवरऑल जो आरएनए है दैट इज नॉन जेनेटिक। डोंट कंफ्यूज, आरएनए जो है जीन है, इट में वेरी देन ये क्या करेगा, ये बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन।
that way that RNA must not carry. But since it is carrying the genetic information from the DNA, only part, which is messenger RNA, can be called as actual information, parental character. Yes. Agree? Yes, sir. Perfect. The next one is पॉइंट नंबर 5. mRNA का लिखा रहा हूं मैं. T और R के तो स्ट्रक्चर बनेंगे तो हम वो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको मिटाने के बाद. ओके. इन eukaryote mRNA is methylated. क्यों ऐसा लिखा मैंने? एनीवन कैन टेल मी, ऐसा क्यों लिखा मैंने मिथाइलेटेड? GPPP that MG at 5 prime. Agree? In prokaryotes, SD sequence that is known as Shine-Dalgarno, साइंटिस्ट का नाम है, Shine-Dalgarno sequence is present that initiate translation. चलिए point number 7 and the last. Point number 7 and the last. AUG is an initiating codon on mRNA. AUG, ये बताता हूं कोडॉन अभी क्या है. AUG is an initiating codon on mRNA. बस ये बात हुई किसकी बच्चों में? mRNA की. दुटेड, अथर्व, अमृता, दिशा, दिया, गौरी, हर्षल. दुटेड. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके नीचे नोट करके लिखे. इसके नीचे मैं टी और आर नहीं लिखा रहोगे ना, टी और आर मैं बाद में बताऊंगा. टेबल बना दिया, इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे. नोट, आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, इसलिए उधर लिख रहा हूं. नोट, कैपिंग protects mRNA. Capping protects mRNA from degradation by enzymes. Capping protects mRNA from degradation by enzymes. Whereas tail protects from enzymes and detachment from ribosome. Detachment from ribosome. देखिए क्या लिखा है ओवरऑल. नेटवर्क बहुत तकलीफ दे रहा है आज.
एनीवेज मैंने क्या लिखा है बच्चों, इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी इन यूकैरियोट्स वी हैव पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग वी ऐड अ कैप एंड वी ऐड अ टेल. कैपिंग और टेलिंग इसलिए भी हो जाती है बिकॉज व्हेन दिस आरएनए विल कम इनटू साइटोप्लाज्म, तो हो सकता है कि सेल्यूलर एंजाइम इसको डिग्रेड कर दे, सेल्यूलर एंजाइम इसको डिग्रेड कर दे. बट कैपिंग और टेलिंग होने से वो सेल्यूलर एंजाइम इस पर काम नहीं कर पा रहे, पहली चीज. दूसरा, इसी आरएनए पर तो आपने प्रोटीन बनाना है, एंड सिंस इसी आरएनए पर प्रोटीन बनना है तो राइबोसोम की सब यूनिट भी इसमें जुड़ने वाली है, 30s और 50s, 40s और 60s, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. तो ये टेल वाला जो पार्ट है वो उसको डिटैचमेंट, फाइनली जो डिटैचमेंट का काम करता है, क्योंकि वहां पर टर्मिनेटर होता है और इनिशियल पर इनिशिएटिंग कोडॉन होता है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है. तो 5 प्राइम पर स्टार्ट होने वाला है और 3 प्राइम पर एंड होने वाला है. डिटैच नहीं होगा तब तक प्रोटीन चेन फ्री कैसे हो. तो ये सारा काम कैपिंग और टेलिंग की वजह से यूकैरियोट्स में हो जाता है. इसीलिए यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एक प्लीज नोट, नोटेड. Yes, sir. बता दो बच्चों, अरे बता दो इसे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sharing the image and then सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए जो बच्चों, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीड. वैसे तो तीनों ही जेनेटिक प्रोसेस की भी बात करते हैं, सेंट्रल डोगमा की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बट एज फार एज नीड इज कंसर्न, टीआरएनए बहुत ज्यादा सवाल आते हैं. चलिए, हेडिंग डाल रहा हूं मैं टीआरएनए, हेडिंग डाल रहा हूं मैं टीआरएनए. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, टीआरएनए also known as adapter RNA. Point number 2, adapter RNA, soluble RNA, RNA solubility. Point number 2, makes
10 to 15% of total RNA. Point number 3. Audibility and visibility is clear, doctor? Yes, sir. Yes, sir. More than 100 tRNA are known. More than 100 tRNA are known. It is the smallest RNA. It is the smallest RNA. It has modified nitrogenous base, glycolic. मतलब जो थाइमीन सॉरी एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं. तो मॉडिफिकेशंस कैसे हो जाते हैं? लाइक यूरिडीन इज स्यूडो यूरिडीन. Pseudo-uridine and dihydrouridine, इसको कहते हैं साइन. Dihydrouridine, pseudo-uridine, dihydrouridine, DHU, ribothiamidine, ribothiamidine, etc. परफेक्ट. ये कुछ नहीं, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड हैं और वो मॉडिफाइड बेसिस टीआरएनए में पाए जाते हैं. वो क्यों पाए जाते हैं खुद ही अभी आंसर आएगा जब हम स्ट्रक्चर उसको देखें. It has 2D clover leaf model and 3D L-shaped model. It has 2D and 3D structures. It has 2D and 3D structures. 2D जो है that is clover leaf and 3D जो है that is L shape. मैं वो स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ. दोनों स्ट्रक्चर बनाने के बजाय I'll share that structure और बना देता हूँ. टाइम लगेगा लेकिन बना ले, ज्यादा बेटर है. दोनों में कंपैरिजन करके मैं बनवा दे रहा हूँ.
This is 2D structure. Five prime, 3 prime. आप ये स्ट्रक्चर समझो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरा एक स्ट्रैंड था, इसको छोड़ दिया तो इतना ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर था कि वो ऐसा कॉइल हो, एक दूसरे पर बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आरएनए बीइंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट ये स्ट्रक्चर सीधा रह नहीं पाता, लॉन्ग थ्रेड है, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो कॉइलिंग कर लेता है, और ज्यादा होता तो शायद डीएनए की तरह वो सुपर कॉइल्ड हो जाता। यू विल सी कि आपको कहीं पर भी पेयरिंग इन दोनों में नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यूजुअल बेस पेयर्स, इनमें अनयूजुअल हो पा रही है, उनको मैंने लिख दिया पहला टी साइन सी लूप, टी साइन सी लूप. This one is anticodon loop. Anticodon loop. This one is DHU loop. So this is known as DHUR or DHU stem. This is known as anticodon stem. Anticodon stem. This is known as T sin C stem. One is stem, one is loop. One is stem, one is loop. तो स्टेम और लूप इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है आर. और जहां 3 होता है वहां पर सीक्वेंस फिक्स है ACC. ये सवाल था 2014 या 15 का. चैतन्या देवरे, गौरी अहिरराव, हर्षल, बना लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज 3D स्ट्रक्चर, वो भी बना देता हूं, उसे भी मेरे साथ ही बना लीजिए.
Singh, are you there? Yes, sir. बच्चों विजिबिलिटी हो रही है क्या क्लियर? Yes, sir. नेटवर्क थोड़ा सा आज मुझे बार बार गड़बड़ होता दिख रहा है. Okay, noted. Yes, sir. बच्चों मुझे नेटवर्क आज बिल्कुल भी बच्चे हो रहे हैं, बार बार रिज्वाइन हो रहे हैं. ठीक है, लेट मी फिनिश दिस वन ओनली बिकॉज रिकॉर्डिंग में इसका मतलब नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे सामने सिस्टम पे दिख रहा है सब ब्लर ब्लर हो रहा है.
नो प्रॉब्लम, मैं आरएनए फिनिश करता हूं बस, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा। एमआरएनए वी ऑलरेडी डिस्कस, एमआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए का काम करता है। The genetic information carried from इसीलिए उस एमआरएनए को आप जेनेटिक आरएनए कह सकते। अब वो जो एमआरएनए है वो मैंने आपको बताया, डॉक्टर आरएनए भी कहते हैं, सॉल्युबल होने की वजह से एसआरएनए भी कहते हैं। टोटल 10 to 15% बनाता है। 100 से ज्यादा टीआरएनए नोन है, अवेलेबल है, ये सबसे छोटा होता है और कुछ बेसिस मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होने की वजह से वहां पर पेयरिंग नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जहां पर बेस पेयर नहीं हो पाते क्योंकि वो थोड़े से अनयूजुअल बेस पेयरिंग हो गई। यूजुअल बेस पेयरिंग नहीं है, एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन ड्यूरासिल जैसी नहीं है, अनयूजुअल है। Therefore, this 1, 2, 3 or 1, 2, 3, this is the 2D model, this is the 3D model. This 2D model is known as cloverleaf model. Is known as cloverleaf model and 3D is known as L-shaped model. L-shaped model है इसलिए वो 3D model, this is 2D model. In this 2D model, this is the one strain 5 prime to 3 prime. पर जैसे ही आपने छोड़ा तो it just spoil और यूजुअल बेस पेयरिंग की वजह से सिर्फ वहां पर पेयर नहीं है, अदरवाइज रेस्ट सभी दूर पेयर्स हैं। एटी एटी जीसी मतलब एयू जीसी एयू जीसी एयू जीसी ए जीजी एसी सीए सीसी, देयर आर सो मेनी बेस पेयरिंग एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पेयरिंग नहीं है, यहाँ पेयरिंग नहीं है, यहाँ पेयरिंग, बिकॉज ये थोड़े से अनयूजुअल बेस पेयर्स। यूजुअल मतलब यूरिडीन, एंटीकोडॉन और यहाँ होना चाहिए साइटोसिन, बट दिस इज राइबोथाइमिडीन। तो ऐसे अनयूजुअल बेस पेयर्स की वजह से वहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है। 2D मॉडल, 3D मॉडल में उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाया गया, जैसे 3D मॉडल दिखाया गया उसमें 1 2 3 3 पोजीशंस आर देयर जहां पर पेयरिंग नहीं है क्योंकि वहां पर अनयूजुअल बेस पेयर्स। टी साई सी ये वाला हुआ, दैट इज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, मतलब ये आ रहे हैं आरएनए से भी जुड़ेगा, आरआरएनए से भी जुड़ेगा, बिकॉज इफ प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज्ड द एसोसिएशन ऑफ ऑल द 3 आरएनए एम टी आर must be there. So M is carrying the information, T is carrying the amino acid, and R is providing the site. So तीनों एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। तो टीआरएनए मीटर का काम करता है एमआरएनए और आरआरएनए के बीच। तो कहीं ना कहीं एक इसके पास साइट लगेगी जो राइबोसोम से बाइंड होगी, एक लगेगी जो अमीनो एसिड से बाइंड होगी, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे कि प्रोटीन बनने वाला है, और एक एंटीकोडॉन लूप होगा जो कि एमआरएनए से जुड़ेगा। तो एक राइबोसोमल आरएनए से जुड़ गया, एक एमआरएनए से जुड़ गया, और एक तो जो अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है उसके साथ। तो ये होता है 3D स्ट्रक्चर, ये दो होता है 2D स्ट्रक्चर। इसमें बस ध्यान रखना है 1 2 3 में बेस पेयर्स नहीं होते और वो अनयूजुअल बेस पेयरिंग की वजह से। सर हाँ बोलिए। सर समीक्षा को इन कीजिए ना। कर दिया वो बहुत बच्चे आज इन आउट हो रहे हैं बच्चों, मुझे लग रहा है मेरा ही नेटवर्क का इश्यू है आज। रिकॉर्डिंग में नहीं डाल पाऊंगा, we need to revise it one more time. Yes, sir. Yes. sir. इसका इमेज शेयर करता हूं बच्चों और आरआरएनए की बात करते हैं। सर थर्ड पॉइंट में दिया है मोर देन 100 टीआरएनए आर नॉट, तो वो टाइप्स है या नंबर है? नहीं टाइप्स है, टीआरएनए के टाइप्स होते हैं। वैसे किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए केवल 20 टाइप के टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर एक्सपेक्टेड। 20 अमीनो एसिड्स। Yes, that's why only 20 we need to learn। ये 100 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबको मिला। परफेक्ट। ओके बच्चों आरआरएनए की, इसको मैं मिटाता हूँ, इमेज शेयर कर दी है मैंने।
तो यस्टरडे न्यूज़पेपर में ही बताया गया था कि आज कुछ सारे नेट पे डाउन रहेंगे, इधर में अजीब सी घटना Okay. The third one is rRNA. That is ribosomal RNA that makes how much percent? 70 to 80. RNA. Number 2. ये भी सवाल टीआरएनए पर आरआरएनए पर भी सवाल आता है। इसलिए मोस्ट अबंडेंट है लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 70 to 80% है बराबर। rRNA in prokaryotes are प्रोकैरियोट्स में 5s rRNA, 5s rRNA, then 16s rRNA, 516, then 23s rRNA, 516, 23. Whereas in eukaryotes, five S R five S rRNA, 18 S RNA, 23 तो यहाँ rRNA, इन सब में जो कॉमन है दैट इज व्हाट 5 है। छोटी है इसके पास है 5.8 इसके पास, मतलब 5 तो कॉमन हो गया, पर 5 से बड़ा 5.8, इधर पे 16, इधर पे 18, इधर पे 28। Noted? Five RNA, 5 rRNA, which is common in both prokaryotes and eukaryotes, provide the binding site to tRNA. Provide binding site to tRNA. Number 4,
all these rRNA, all these rRNA gets associated with specific protein to form ribosomes. (50S) in prokaryotes, eukaryotes. 60S and 40S, 50S and 30S. 50S में 23, 5. 23 plus 5 rRNA plus 32 proteins. (30S) has 16S and 20. 60S rRNA plus 21 proteins. ये लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं. 60S 28, 5 और 5.8. 5 plus 5.8 plus 58 plus 50 proteins. इसमें 18 plus 30 SRI is 33 proteins. बच्चों बिल्कुल भी नहीं आ रहा मेरे को, तो समझ में कि नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. वो बस आप नोट करते जा रहे हैं, इतना ही लग रहा है मुझे. प्रिया, कुछ समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, पर बहुत नेटवर्क इशू है. क्लास बिकॉज ये मुझे ही मजा नहीं आ रहा बच्चों पढ़ाने में, के बाद मुझे ही वो फीलिंग है क्योंकि सामने स्क्रीन पर मुझे बार बार वो हैंग होता हुआ दिख रहा है. सो नॉट एट ऑल इट इज वर्थ. और ये आरएनए और ट्रांसलेशन ये ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे हम. आरएनए और ट्रांसलेशन मुझे अच्छे से फिर से बताना पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम, अनदर डे विल लर्न दिस. एक दिन और इसे फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग. यू विल लीव द क्लास और तीनों आरएनए पढ़ के रखिए. कुछ डाउट आता है तो आगे मुझे बताइए, तब मैं आपको नेक्स्ट में जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन बता पाऊंगा.
है ना? तो अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। जेनेटिक कोड का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं ताकि आप लोग उसे पढ़ के रखें, समझ के रखें, फिर मैं आपको सीधे ट्रांसलेशन बता दूं। मैं रिवाइज कराऊंगा, आरएनए भी रिवाइज कराऊंगा और जेनेटिक कोड भी रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये लेक्चर भी प्रोबेबली अपलोड तो मैं कर दूंगा, बट आई डोंट नो कि कितना इफेक्टिव वो होगा। तो मैं आपको जेनेटिक कोड थोड़ा ब्रीफ करता हूं एंड देन आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, सर sir. email। कंसेप्ट छोटा सा बता रहा हूं बच्चों जेनेटिक कोड का, जो उस दिन भी मैंने आपको बताया था। जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए के पास 4 कोड है, ए टी सी जी, जो आरएनए के पास 4 है, U, C, D। और जो बनना है इस प्रोटीन Yes, sir. Yes sir। नेटवर्क हैंग हो गया। यानी इसके पास 4, इसके पास 4 और इसको बनाने हैं 20। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाएगा जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि ए एक अमीनो एसिड बना दे, टी एक अमीनो एसिड बना दे, सॉरी यू, भाई 4 अल्फाबेट से 20 बनने हैं। एक सिंगल यदि आप लेते हैं तो इससे केवल 4 अमीनो एसिड बनते हैं, ओनली 4 अमीनो एसिड। सिंगल यदि मैं लेता हूं, सिंगल अमीनो कोड लेता हूं AUGC, तो इससे 4 ही अमीनो एसिड बनते हैं। लेकिन यदि मैं डबल लेता हूं, बट इफ टुक डबलेट्स, तब क्या हो जाएगा? 4 into 4 16 अमीनो एसिड बन जाएंगे। स्टिल इनसफिशिएंट। भाई ए अकेला एक अमीनो एसिड, यू अमीनो एसिड, सी अमीनो एसिड और जी, ये चारों एक ही अमीनो एसिड को बनाएंगे तो 4, दो मिलकर बनाएंगे, ए यू, यू सी, सी जी सी यू जी ए, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, स्टिल इनसफिशिएंट। लेकिन यदि यही ट्रिपलेट कोडॉन बन जाए, तो लगभग 64 बनते हैं, which is more than sufficient, क्योंकि टोटल बनाने आपको 20। परफेक्ट। Yes, sir. फिर से हैंग हो गया है। एनीवेज, तो मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रिपलेट, बस इतना था ताकि आप पढ़ पाए। ट्रिपलेट कोडॉन होता है, AUG, GUG, CUG, इवन GGG, GAA, AAA, दिस टाइप ऑफ कोडॉन्स। इसीलिए कोडॉन को कहा जाता है, कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। क्यों और कैसे सारी कहानी अगले इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग कर रहा है नेट आज, मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में, इनफैक्ट मजा नहीं आ रहा है। तो आई एम लिविंग द क्लास, जस्ट रीड इट। नेक्स्ट इसमें मैं पूरा रिवाइज करता हूँ, आरएनए भी रिवाइज करता हूँ, जेनेटिक कोड भी, देन ओनली ट्रांसलेशन कैन बी अंडरस्टूड। ओके, ऑल द बेस्ट। यस प्रथमेश, लास्ट लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम।